Climate justice! When do we want? No! What do we want? Climate justice! And when do we want? No! No more mining! No more dams! No more mining! No more! In a larger, in a larger people and larger network. But then because of this ban, we have only very few people here with us, and I hope that थोड़ा देर के बाद ये बारिश रुक जाए, and then many people will join us. So I welcome each and every one of you to the Global Climate Strike Day. Let me give a view of 2021 GCS. Many of you might remember what is we celebrated GCS last year. It was on 19th of March 2021, and it was done by Friday for Future Arunachal Pradesh itself in collaboration with Green Media, YMCA, and it was a really successful program last time yet. And this time also, Friday for Future Arunachal Pradesh in collaboration with YMCA, and then Green Media, and then Viva Resistance, and HRLN, we are organizing this Global Climate Strike Day 2021. This is our world, This is our earth. this is a place where we belong. This is our home, this is our time, this is the place where we come from. लेटर लिख के विल प्रेशर द गवर्नमेंट द कंसर्न गवर्नमेंट, जैसे कि जो सेपा से हम मेरा भाई ये दिबांग वैली का बोलेगा, लोअर दिबांग वैली का बोलेगा, तो विल सेंड द लेटर्स, हम लोग का HRL का लेटर हेड से देंगे, और जितना भी यहाँ पे एक्टिविस्ट है उन लोग का साथ सिग्नेचर लेके विल ट्राई टू प्रेशर, एंड देन सिंस वी आर HRL our headquarters in Delhi. So today I'm standing in front of you all to talk on the environmental impact at my district headquarters, that is Upper Subansiri. And yes, I would like to remind you all that I'll be speaking only on the issues that are very prevalent and which needs like immediate action. Let's start then. We as a human, we have so much of unfulfilled desires and demands. So in order to fulfill that desires and demands, we don't realize that our action, it always impacts the nature and also the resources available in the nature. हम थैंक यू इसलिए आज के लिए सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को शायद याद होगा 2016 में जो ताव में इंसिडेंट हुआ था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस समय हमको इतना नहीं पता था कि उस समय हुआ क्या था, मतलब सिर्फ इतना पता था कि वो डैम की वजह से हुआ था। पर प्रीवियस ईयर मैंने जब HRL ज्वाइन किया दिल्ली में, तो मुझे बहुत करीब से जो केस है उसको स्टडी करने का मौका मिला। तब पता चला कि जो एक्टिविस्ट है और जो मीडिया पर्सनैलिटी है उन लोगों ने कितना काम किया था इसके ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ का जो विक्टिम्स है उन लोगों को जस्टिस मिला नहीं है। पर अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो काम चल रहा है। जब तक उस चीज़ का ऊपर में कोई विजिलेंस रखता है तो काम चलता रहता है, तो हम लोग को एक जस्टिस मिलने का होप भी रहता है और उस चीज़ में फोकस रहता है कि वो चीज़ आगे नहीं होना चाहिए। छोटा सा कराया जाता है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर हैविंग वी ऑन, हम हर चीज़ हमें जरूरत है। बारिश भी जरूरत है, गच्छी भी जरूरत है, गच्छी करना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट भी चाहिए। लेकिन कितना हद तक डेवलपमेंट चाहिए? डेवलपमेंट उतना हद जितना तक हम इसको सस्टेन कर सकें और हमारे कमिंग जनरेशन इसको अचीव कर पाएगा। इसको रीयूज करके रिसाइकल करके जो भी प्रोसेस है, 3R, right? We have to follow 3R: recycle, reuse, and reduce. We can't do anything. We will suffer. Everybody in the Itanagar city will pack up and go back to their hometown one day or someday. ये हम बोल रहा, I am not a big environmentalist, but I am serious and concerned citizen who work constantly for the preservation of streams and rivers around the city. You have seen the Lagoon rivers, how dreaded it is. It is, वहाँ में तो मछली से ज़्यादा प्लास्टिक मिलेगा आपको Lagoon river, and it is the tributaries of Senki river. You have seen Yagamso, the sewage carrier, which is passing through the heart of the city, and it only remains as a sewage carrier. It is a very big concern for us, but our people are not concerned, our government are not concerned. Today, the numbers of participants tell us कि how serious we are. कोई आया ही नहीं, तो हम लोग वो चलो जो भी अच्छा काम करने जा रहा होगा, number does not matter.
and all, there should be someone who voice for the preservation of environment. Because as per the guidelines, as per the rules, it has to be 200 kilometers, 2 kilometers out from the township or the dwelling areas. तो ये सब का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है. वहाँ भी पता चला कि डिस्ट्रिक्ट को जो यूडी डिपार्टमेंट है उसके पास कुछ गाइडलाइंस नहीं है और उसके पास पिकअप जो जो इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है वेस्ट को पिकअप करने का, डंप करने का प्रॉपरली कुछ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है. गार्बेज डिस्पोजल के लिए आपका क्या था, ये डस्टबिन नहीं है, ट्रक ठीक तरह से आता नहीं है, कलेक्शन जो होता है जिस तरह से वो ठीक तरह से होता नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन अरुणाचल प्रदेश. एंड ये तो बस 2 डिस्ट्रिक्ट का सवाल हो गया, एक ईटानगर है और एक आलो. मुद्दा है, ये मनुष्य को बचाने का मुद्दा है. ह्यूमन बींग से उसको बचाने का मुद्दा है, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना मीन्स ह्यूमन बींग्स को बचाना है. सी, मे इट बी रिलीजन or may it be government or may it be a big person, environment is above all. जिस दिन ये पानी, नदी, नाला, जिस दिन ये जंगल, पहाड़ खत्म हो जाएगा तो our existence will be under threat. So through global climate strike, we are trying to tell the people कि at least we should preserve the natural resources, natural vegetation, है कि नहीं? See, I have seen, many religious leaders preach for the, peace and tranquility in the society in a religious way. And they always proclaim that, nature is created by the God. But it is ridiculous to tell you all that these, peoples are destroying the, resources and the nature created by the God. If you are preach for the God, you should save the nature, because nature itself is created by the God. So through this GCS, I would like to convey a message, clear-cut message to those, religious preacher also. At least start preaching for the environmental preservation in the churches, in the temple, in the Gurudwara, or may it be, this one, what we call the mosque, masjid, right? तो हम लोगों को आगे आना चाहिए. And I would like to, convey through you media fraternity that our, Itanagar and Naharlagan, the twin capital city, is, facing water scarcity. Last 2-3 days, I have been, talking with the denizens who actually suffer from, this water scarcity. And rain का जो पानी होता है, actually वो जो है recharging agent है. और जब नदी, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इस, आप अगर अपना बाल को टकले करता है ना, टकला बनाता है, जब बाल कुछ नहीं रहता है तो आपका यहाँ ऊपर में पानी डाल के देखो, पानी सीधा नीचे गिरेगा. तो क्या मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप प्लांटेशन, अगर फॉरेस्ट को आप डिफॉरेस्ट करेगा, देन पानी नहीं रुकेगा, पानी सीधा चला जाएगा स्ट्रीम्स में, ये नाला से जाके सीधा ओशन में चला जाएगा. तो पानी नहीं रुक रहा है. नहीं रुकने से क्या होता है कि स्प्रिंग वाटर जो डिप्लीशन होता है, इस स्प्रिंग वाटर जब डिप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रीम सूख जाएगा. स्ट्रीम छोटा स्ट्रीम जो वो नदी का ट्रिब्यूटरीज होता है, अल्टीमेटली हम लोग का नदी सूख जाएगा. नदी सूख जाएगा तो वाटर सप्लाई भी बंद हो जाएगा. वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स मर जाएगा. तो सिंपल फंडा है, हम लोग जीसीएस हमेशा करता है कि एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए, कि एंटायर वर्ल्ड में अभी एनवायरनमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग है, यू हैव हर्ड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ अ सीरियस थ्रेट, है कि नहीं? आइस इज मेल्टिंग रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो ये सब चीज़ें हम लोग को करना चाहिए. एंड गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन दिस. गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट कम अप विद द पॉलिसी टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. तो ये जितना जो ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह है, इट विल गो ऑन, बट एटलीस्ट प्रायोरिटी शुड बी द एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. हम लोग ये बोलना चाहता है कि जीसीएस का स्त्रोत से, एंड यू हैव सीन द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द पार्टिसिपेंट्स आर वेरी लेस इन नंबर, है कि नहीं? तो हम लोग दुख लगता है कभी कभी कि एवरीबडी नीड्स वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑल, बट नोबडी केयर अबाउट द एनवायरनमेंट which provides water and oxygen to us. तो ऑक्सीजन का भी ना. and this the movement does not belongs to the human right law network, the YMCA, the green media and the debunk resistance and FFA.
इट शुड बी द मूवमेंट ऑफ द पीपल, है कि नहीं? ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग भी बहुत दुख लगता है ना, इमोशनली हम लोग आउटबर्स्ट होता है कभी कभी कि पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट द एनवायरनमेंट, हम लोग ऐसे सोचते हैं. सी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि आई एम परसुइंग LLM in Rajiv Gandhi University, and I'm in final semester. And I hope I have been allowed uh, uh, this one topics for dissertation. That is a case study on rising river pollution in Itanagar capital city and effective implementation of Water Act. And while doing research, I have found this 9 streams in the Itanagar city alone. Not about the this Naharlagan, okay? Itanagar city alone. And these streams once upon a time was a fresh streams, and it is ultimate tributaries of the Senki rivers. After merging with the Yagamso, which passes through the IG Park area, and till it reaches to the confluence of Senki river. तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है कि सेंकी रिवर जो हेड वाटर में सेंकी एरिया और द हेड वाटर और द इंटेक पॉइंट इट इज़ फ्रेश, लेकिन जब यहाँ का सिटी से जो स्ट्रीम्स आता है जब वो चंदन नगर में मिल जाता है तो देन पोल्यूशन स्टार्टेड द वेस्ट ना एंड प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेशली यहाँ में क्या है कि वी डू नॉट हैव बिग इंडस्ट्रीज ना विच रिलीज इफ्लुएंट एंड ऑल, बट ऑब्वियसली कि हम लोग का नदी में प्लास्टिक तो है, बहुत प्रकार का प्लास्टिक है, एंड डोमेस्टिक वेस्ट है और कॉमर्शियल वेस्ट है, सीवेज लीकेज है कि नहीं? तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट होगा. एंड इट यहाँ से क्या हो गया वाटर बोर्न डिजीजेस भी आता है जो स्पेशली दोज लोकेलिटीज़ हु सेटल अलोंग द रिवर साइड्स. तो हमने रिसर्च कर रहा है एंड वो रिसर्च का मुताबिक हमने क्या किया है कि गंगा बस्ती का पहाड़, गंगा बस्ती से अंदर ना टूवर्ड्स सागाली 6 किलोमीटर फ्रॉम गंगा बस्ती आई हैव बीन थ्रू. तो हमने क्या किया है कि मेजर किया है, मेरा साथ और भी था, बहुत सा फ्रेंड्स था, हम लोग मेजरमेंट किया है कि वहाँ का स्ट्रीम्स का हालत क्या है जो कि अल्टीमेट सोर्स है गंगा बस्ती के लिए वाटर सप्लाई के लिए. तो वहाँ का स्ट्रीम्स का डिस्चार्ज जो वॉल्यूम हम लोग निकलता है ना पर मिनट में वो भी बहुत कम हो गया. माने कोई स्ट्रीम तो सूख गया. हमने ऐसे भी मिला कि द रीजन हैज़ टू शिफ्ट देयर इंटेक पॉइंट, क्योंकि जिस स्ट्रीम से वो लोग पहले में पानी लेता था वो सूख गया, तो वो लोग फिर स्ट्रीम जो पेरिनल जो स्ट्रीम से अभी जो बह रहा है उससे फिर वो लोग कनेक्ट करता है. तो ऐसे कब तक करेगा? वन डे दैट टू विल डिप्लीटेड ना. तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है. अगर अर्बनाइजेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑब्वियस है कि नहीं. नाउ डिमांड्स ऑफ वाटर विल बी इंक्रीजेस. तो वाटर का सोर्स कहाँ है? हम हमेशा बोलता है कि हिल एरिया में सोर्स है, उसको तो एटलीस्ट डिस्ट्रॉय मत कीजिए ना, एटलीस्ट लैंड ग्रैब वहाँ पे मत कीजिए, ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ में मत कीजिए. हम इमेजिन करता है कि ईटानगर का आसपास में बहुत सा घने जंगल अगर सामने में पेरी ऑफ द ईटानगर सिटी में नो गो ग्रीन एरिया होने से हम लोग को कितना बढ़िया होना था कि वहाँ से सोर्स होना था, वहाँ में नेचुरल जो वाइल्ड एनिमल है वो रहना था, हम लोग बर्ड्स का चिरपिंग को सुनना था, है कि नहीं. तो ये सब होना चाहिए था. आई समटाइम इमेजिन कि ऐसे होने से ठीक था, बट आवर पीपल आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट द दोस वैल्यूज, है कि नहीं. तो उसका वजह से सी ईटानगर इज फेसिंग. थैंक यू.